अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फर्स्ट रमदान करीम एवरीवन, रमदान मुबारक, रोजा ढेर मुबारक शाह, रोज़ा मुबारक हो आप सबको। Today I'm gonna make, as I told you, I never planned for the iftar, but whatever I go, I have it here, and then I'm gonna make recipes. So I just go with the flow and show you. So मैं आपको जैसे बताया कि मैं बस चीज़ें उठा लेती हूँ और फिर बनाना शुरू कर देती हूँ। मैं प्लान नहीं बनाती। और आज तो रोज़ा है, मैं कॉफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एडिक्शन है। और कॉफ़ी नहीं पीती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, तो आज वो वाला किस्सा है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं समोसों का आटा बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं समोसों का आटा बना रही हूँ। ये मैंने 2 कप फ्लावर लिया है, क्योंकि मैं समोसा भी बना रही हूँ और पेस्ट्री भी बना रही हूँ। और मैंने इसमें डाल दिया है 3 ये वाली स्पून मेल्टेड घी मैंने डाल दिया है इसमें। और मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी। मुझे पता है कि ½ टीस्पून तकरीबन नमक डाल दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैं सबसे पहले ये क्यों बनाती हूँ, क्योंकि आटे के लिए थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसको रेस्ट चाहिए होता है। तो मैंने 3 स्पून ये वाले 3 स्पून घी के डाल दिए थे, पर मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि जब आप यूँ करो तो आपकी मुट्ठी बननी चाहिए। सो आई put 3 स्पून ghee, but I think this is not enough in 2 thing, because the reason is, if you do like that, we want a proper, like a, you can make like a proper dough like that. So I'm gonna add one more spoon in this atta. So yeah, that's much better. And I put 1 spoon of salt. अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसमें वाटर ऐड करूँगी। एंड नाउ स्लोली I'll add some water, but very slowly, okay? Because we don't want this atta to be too runny, or we don't want it to be too hard in between. So literally, like, I just add maybe about quarter of cup. And I'll see how much more I need. And this is just like a proper chapati atta, we call maida, so white chapati atta. अब मेरा आटा ये तैयार हो गया। इसको मैं कोई चीज़ इसके ऊपर रख दूंगी और इसको आधे घंटे के लिए मैं एक साइड पे रख दूंगी। मेरे समोसे तो ऑलरेडी तैयार भी पड़े हुए हैं, क्योंकि उस दिन मैंने बनाए थे आप लोगों के साथ। रेसिपी मैंने शेयर भी की थी, लेकिन ये अभी ये आटा आपको इसलिए दिखा दिया कि ये बिल्कुल समोसों का आटा है, समोसों के लिए बनाना है, पर मैंने एक और चीज़ भी इससे बनानी है। और अभी मैं सैलड बना रही हूँ। ये मेरे बच्चों का फेवरेट सैलड है, एवोकाडो सैलड इसको कहते हैं। तो ये सैलड भी मैं बना रही हूँ, साथ साथ बनाती जाऊँगी, आप लोगों को दिखाती जाऊँगी ये ऐसे करके। एवोकाडो को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। सो आई एम मेकिंग एवोकाडो सैलड, which is one of my children's favorite dish, very nutritious. This is very nutrition, especially in Ramadan, when when we are fasting and we need all this energy. So
Yeah, this is one of my children's favorite food. You can use only one avocado. The reason I'm using 2 avocado because I want to use these avocado because avocado get bad really quickly and I don't want to put them in a bin, so I say I can use them. Otherwise you only need 2 avocado for this kind of salad. So that's my avocado. Now I just show you with the hand. I don't need a chopper. So just little bit, half an onion, okay? It's Ramadan and you know, too much onion is no good because then we praying, we going straight away for Salah as well. So and your breath smells. Sorry? And then your breath smells. Yeah, and then it's breath smell and other people, especially if you go to mosque. Nowadays all the mosque is closed. Astaghfirullah. May Allah end this corona thing with a barakah. So ये मेरा हो गया और अब इसके बाद just like 2 spring onion, okay? It's only 5-minute job but it's lovely salad. I'm just using my traditional way now, my chopper, because it's fast and I don't want to waste too much time on cooking. I want to do more ibadat. But because I promise you girls that I'm gonna share every night recipe with you, that's why I just keep my promise, inshallah. Okay, that's done. And now just a half a cucumber, but I slice it like that. So I slice this way and then this way. And now if you're not good with hand cutting, then use chopper. And then just small pieces of 2 carrot. और अब मैंने सब चीज़ें पहले से वॉश की रखी थी कि मेरा ज़्यादा टाइम ना लगे, तो बहुत छोटा छोटा करके आपने लेटेस्ट डालना है, वेरी लिटिल, ज़्यादा बड़ा आपने नहीं डालना, ओके? और अब 1 टोमेटो, वो भी पतला पतला सा काट दे। अगर आप में से कोई ऐसे भी हैं जो रमज़ान में वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं कि इस किस्म के खाने बनाए और रमज़ान में खाए, तो वो इंशाल्लाह काफ़ी वेट लूज़ कर लेंगे। अब मैं तो टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टिन मैंने इसके ऊपर किडनी बीज डाल दिया। आप लोग अगर बॉईल कर सकते हैं तो आप बॉईल कर लें। डाल दिया। अब अच्छा बिल्कुल एक पिंच ऑफ गार्लिक, इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं तो बदबू काफ़ी आएगी, फिर बदबू नहीं, खुशबू ज़्यादा। और 1 पिंच ऑफ मैंने सिर्फ 2 पिंच क्रश चिली भी डाल दिया। 2-3 लीफ मैंने कोरिएंडर की भी डाल दी है, ठीक है? इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब इसके ऊपर ये मेरे कुक स्वीट कॉर्न है, फ्रोज़न वाले हैं लेकिन कुक हुए हैं, इसको डाल दे। थोड़ा सा नमक डाल दे, ये डाल के अब थोड़ा सा जस्ट, अगर आपको डाइट के लिए यूज़ करना हो तो बेशक ये ऑलिव ऑयल स्किप कर दे, और अगर नहीं तो 1 स्पून सिर्फ ऑलिव ऑयल डाल दे। और ये आपका एवोकाडो सैलेड तैयार है, जो कि बहुत मज़ेदार होता है। आप किसी भी डिश के साथ खाएं या इसमें चिकन मिक्स करके खा लें। अक्सर मैं बच्चों के लिए इसमें चिकन की पीस डाल देती हूँ, जब कोई बच्चा डाइट करता है या हेल्थी ईटिंग करता है, सिदिक ज़्यादा तो मैं इसमें मिक्स करके चिकन भी डाल देती हूँ। बाउल में मैं इसलिए डालती हूँ कि मेरा
अब ये मेरी एक चीज़ तैयार हो गई, इसको मैं अपने पीछे काउंटर पे रख दूंगी। मैं दूसरी चीज़ की तरफ आती हूँ। मैंने लोडेड फ्राइज बनाने हैं आज बच्चों के लिए। सो बनाऊंगी तो मैं तब फ्राई में तब करूंगी जब बिल्कुल आधा घंटा रह जाएगा इफ्तार के लिए, पर अभी मैं इसको बनाना शुरू कर देती हूँ। सो सबसे पहले मैंने ले लिया 1 स्पून ऑलिव ऑयल। फिर मैंने ले ली, ये मैंने बिल्कुल 4 छोटे आलू ऐसे वेजेस की तरह, बड़े चिप्स की तरह ऐसे काट लिए हैं। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा, अपने हिसाब से बस डाल दें, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, और इसके ऊपर मैं डालूंगी तकरीबन 2-3 स्पून, चलिए देखते हैं कितना मैं डालती हूँ। ये 1 स्पून, ये 2 स्पून और ये 3 स्पून। 3 स्पून मैंने डाल दी इसके ऊपर अपने बेसन। और अब मैं अपने मसालों की तरफ आ जाऊंगी। मेरा फेवरेट काम, सबसे फेवरेट मेरा मसाला है। तो मेरा मिक्स मसाला 1 स्पून, मेरा ज़ीरा 1 स्पून और मेरी काली मिर्च 1 स्पून। ये मैं डाल के इसको मिक्स कर दूंगी ऐसे करके। ये वही मेरी एवोकाडो के सैलेड का बर्तन है, तो कोई बात नहीं, मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ बगैर धोए हुए। बर्तन बड़ा ज़रूर ले लें क्योंकि इसमें ये खुले खुले होते हैं। मैंने बर्तन थोड़ा छोटा लिया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब आप क्या करेंगे, मिक्स तकरीबन 5-6 मिनट मिक्स करके। सो नाउ इन इंग्लिश, सो cut potato like wedges. I cut 4 potato like wedges. Then I put a pinch of salt, a pinch of garlic, pinch of 2 pinch of green crushed chili, and 3 spoon of gram flour. And now I add about 1/4 cup water. And these are my loaded chips. Okay, so I will fry them. And after frying is another process as well. And also I add 1 spoon black pepper, 1 spoon I add my mixed masala, and 1 spoon zira. Yes, Stella. What you want? Gulab jamun. Yeah, I'm making gulab jamun in a minute. So just give it like a hand think as well, and leave it until we gonna fry this as well. So that's my another dish is ready now. मैं बनाऊंगी अपनी पेस्ट्री की और समोसा की फिलिंग एक ही जैसी है। आपको समोसा की फिलिंग तो मैंने बताई है, पर अभी ये आज तो मैं होम पेस्ट्री बना रही हूँ, तो उसकी फिलिंग मैं आपको बताती हूँ। पर ये सेम मैंने तकरीबन समोसा के लिए बनाई है। बस इतना सा, 1 स्पून ऑयल डाल दें। 1 स्पून ऑयल डाल के इसके ऊपर 1 टीस्पून गार्लिक डाल दें और 1 टीस्पून जिंजर डाल दें और इसको अच्छी तरह से कुक करें। सो आई जस्ट मेकिंग अ समोसा like my home made pastry filling now. So I add 1 spoon oil, 1 spoon teaspoon ginger, 1 teaspoon garlic, and now I'm cooking that. I wash my chicken keema. The reason I'm using chicken keema because chicken keema cooks so quickly, so easily. It didn't take any time, so I'm making chicken keema's filling today. Meantime, I'm gonna cut my onion.
So when it's become a little bit brown and nice aroma smell come out, like you can smell nice garlicky smell. I wash all my chicken keema. And now top of that I'm adding, because I'm making only few pastries, so I'm adding 3 spoons, which is about half a kg mincemeat. So this is for my pastries. And I'm gonna cook that for 5 minutes. अभी मैं 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी. This is cooking and I'm gonna, मेरे ये कुक हो रहे हैं, कीमा कुक हो रहे, तो मैं अपने लिए दो इस साइज के ऑनियन काट दूंगी. इस साइज के ऑनियन काट दूंगी. ये अच्छी तरह से पक रहा है. 5 मिनट हो गए. So after 5 minutes I'm gonna add my 2 onion. I'm cooking on high flame, okay? Now I add 1 spoon crushed chili. And now time for the masala. So I'm adding Madras curry powder, half a spoon, Zeera, half a spoon, black pepper, half a spoon, and my mixed masala, half a spoon. Actually a little bit more. This same filling I use for samosa, and same I'm using for today's pastry. So I'm going to use both this filling for samosa and for the home pastry as well. अब इसको मैं पीछे वाले चूल्हे पे रख दूंगी. ये पकता जाएगा और मैं आगे आपको अपना समोसा चाट तैयार करना सिखाती हूँ. टिन वाले छोले लिए, मेरे पास बॉयल छोले नहीं थे, बॉईल करने के लिए नहीं थी. इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून क्रश चिली. इसमें मैंने डाल दिया जस्ट अ पिंच ऑफ गार्लिक, और 1 ऑनियन को मैं बहुत ही बारीक सा काट दूंगी चना चाट, आई मीन समोसा चाट के लिए. ये मेरे प्याज हो गया इसमें. और अब इसमें मैं बारीक कटे, ऐसे ज़्यादा बारीक नहीं, ये मैंने बॉईल करके आलू रखे थे, ज़्यादा छोटे नहीं, ऐसे ये भी काट दूंगी. मैं इसमें सिर्फ 2 आलू डालूंगी, ऐसे बड़े बड़े. So only 2 potatoes. I'm going to cut it like that. I think I need to change the pan because this pan is very small. ये पैन बड़ा वाला ले लूँगी. मैं हमेशा छोटे पैन में शुरू करती हूँ. मैंने बारीक 2
2 आलू भी काट दिए। ये मेरे 2 आलू कट गए। So I cut my aloo in my chaat. Now I boil my dry tamarind. मेरी इमली को मैंने माइक्रोवेव में रख के 5 मिनट के लिए रख लिया था। अब मैं इससे चाट लेती हूँ। तो मैं इससे ये रख करके अच्छी तरह से चाट लूँगी। ये मैं इमली की चटनी बना रही हूँ। सो दिस इज माई वे ऑफ मेकिंग इमली चटनी। ओके, मैं कभी भी इसको ज़ाया नहीं करती हूँ। मैं दूसरे दिन इसमें दोबारा पानी डाल के दोबारा थोड़ी सी चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़ाया करना मेरी किताब में नहीं है। So this is my way of imli chutney. I make totally different way. Okay, I add a little bit salt in imli chutney, and I always add a barbecue sauce. So मेरी इमली की चटनी में barbecue sauce जाता है। हो सकता है आपने कभी ये यूज़ ना किया हो, पर this is my famous इमली की चटनी। About 2 spoon इतने उसमें, और 2 स्पून टोमेटो केचप जाएगा इसमें, और अबाउट ½ स्पून इसमें स्वीट चिली जाएगी। बस ये आखिरी ख़त्म हो रहा है तो मैं सारा डाल देती हूँ। ये डाल जाएगी, और इसमें 1 स्पून क्रश चिली जाएगी। ½ स्पून में इसमें ब्लैक पेपर डाल दूँगी। ये मेरा इमली का सॉस तैयार है, और ये अमेजिंग चटनी होती है। या आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेरा समोसा मेरे चाट के लिए मैंने इमली भी तैयार कर ली है, ये भी तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से एक आधा टोमेटो भी काट दूँगी, थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल दूँगी, आधा। तो मेरी चीज़ें तैयार होंगी जब इफ्तारी का टाइम होगा। सो मेरी हर चीज़ तैयार होगी, मैं बस सिर्फ प्लेटिंग करूँगी। फिर ये मेरी समोसा चाट के लिए मेरा चाट मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मेरा वही अपना मसाला जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून डालती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर भी थोड़ा सा छिड़कना है। मेरे चाट का मसाला भी तैयार हो गया, इसको भी मैं एक साइड पे रख देती हूँ। तो समोसों का फिलिंग था मेरा, वो भी तैयार हो गया है। ये अच्छी तरह से भून गया है। इसको भी मैं एक डिश में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये मेरा अब समोसों का फिलिंग और मेरी पेस्ट्री का फिलिंग भी तैयार है। ये पहले के बने हुए समोसे हैं, जो कि मैं अभी चाट मसाले में यूज़ करूँगी, लेकिन अभी फ्राई नहीं करूँगी। जैसे ही आधा घंटा रहेगा तो ये मैं चाट मसाले के लिए समोसे फ्राई करूँगी। सो आई एम मेकिंग मिन्स मीट एंड पीस। दिस इज़ अ वेरी नाइस रेसिपी। You can eat it in sahur time as well. I just go ½ a cup oil and chop 2 big onion. Peas है। So we've just put 3 chopped up onions into oil, let that saute. She's got 3 kilo. How much minced meat? ½ a kg. ½ a kg of minced meat and a bag of frozen peas. So what we're making right now is, like Mum said, is minced meat with peas. It's quite a popular dish in the household. You could easily have it with paratha and sahur as well. It's quite light, even though it's meat.
And it's quite tasty as well. आज मम्मा आपके साथ ज़्यादा बातें नहीं कर सकती है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। अच्छा, मैं अब इसमें 1 टेबलस्पून, नो टीस्पून, ओके, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर डाल दिया। So just add 1 tablespoon of garlic and 1 teaspoon of ginger. The Urdu was quite literal, but don't worry, I'll just repeat it anyway. और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। She's going to continue sauteing. Saute is basically it's a Pashto word and saute means डंडा। Yeah. Saute को डंडा कहते हैं। तो saute का मतलब है डंडा। बल्कि उर्दू में भी सोटी कहते हैं, उर्दू में सैटी कहते हैं। उर्दू में डंडे को सोटी कहते हैं। ये हिंद को पंजाबी काइंड रखते हैं सोटी इज वेल। अच्छा अच्छा, तो पश्तो में सोटे कहते हैं। सोटे। तो ये अच्छी तरह से भून रहा है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी 1 स्पून ब्लैक पेपर, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून माई मिक्स, 1 स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 स्पून करी पाउडर। इसमें मसाले क्यों ज़्यादा डलते हैं? वजह ये है कि कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मसालों का डालना बहुत ज़रूरी है। So we've added all the masalas in, as Mum said, it's quite self-explanatory in Urdu. The reason why we put masalas in there is so that the smell of the keema is overpowered by the masalas and you don't get that meaty 1 smell. टमाटो टिन, आप फ्रेश टमाटो भी डाल सकते हैं। मैं हमेशा टमाटो टिन का इस्तेमाल करती हूँ कीमे में। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो फ्रेश, लेकिन प्यूरी के फॉर्म में डाल दें तो अच्छा है। Okay, so you can use, Mum's using the tin tomatoes, but if you've got fresh tomatoes, you can also add that in. But when you are going to use fresh tomatoes, make sure that it's in a puree form. I feel like Ramadan is going to get worse as the day goes on. I mean, it's going to get harder, innit? It is going to get harder. But you know, it's something for Allah. So जो चीज़ मैं उर्दू में बताती हूँ तो नाफिया है इंशाल्लाह इंग्लिश में बताने के लिए। तो जो इंसान अल्लाह के लिए कुछ करे तो वो खुद ब खुद ही आसान हो जाता है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे काफ़ी एक सीरियस बीमारियाँ हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं रोज़ा ना रखूँ, पर मैं इस नीयत से रख रही हूँ कि अगर मैं रखूँगी तो मेरे लिए अल्लाह आसान कर देगा। और ट्रस्ट मी, बल्कि ये सेहतमंद लोग कंप्लेन कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ। So Mum's saying that if you believe in Allah and if you do something for Allah, then it automatically, Allah then makes it easier for you. Like currently my mum's got quite serious illnesses, but Ramadan right now, day 1 of fasting day 1 has gone very easy for her compared to us who's complaining. So don't complain and just have faith in Allah, and He'll make it easier for you. You're doing it for your Allah. Yeah. Don't keep fast if you're really ill. Yeah. Don't follow me, because please don't do that. If somebody has, नहीं करना चाहिए, पर मुझे अपनी बॉडी मालूम है कि मैं रखूंगी तो मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। लास्ट ईयर भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैंने एक रोज़ा भी नहीं छोड़ा। And also she's got a doctor in the house, so if God forbid something does happen, then you know. So please, those who with medical conditions that are advised by their doctors to not keep fasting, please do not fast. Yeah, don't follow me please. और अब इसमें मैं 1 स्पून क्रश चिली भी डाल दूंगी। अब ये मेरा सब कुछ डल गया है। अब मैं अपना आधा केजी, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम ज़्यादा भूनते हैं मसाला, बस इतना 5 मिनट भूनना बहुत है। So you don't need to fry the masala for too long like you do with other dishes. Why? The reason is because Urdu. we're gonna the same time we're gonna cook. Urdu, you say Urdu, I say Urdu. क्योंकि same time हम कीमे को भी भूनेंगे तो मसाला खुद ब खुद भून जाएगा, टाइम क्यों वेस्ट करना है? So it's because we have to cook the meat itself, the minced meat. So it's just to save time as well. Yeah.
अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, कम से कम मैं 15 मिनट के लिए इसको भूनती हूँ। 15 मिनट लगातार मैं इसको भूनती जाती हूँ। अब जब तक ये भूनता जाएगा मैं कुछ और चीज़ आपको दिखा लेती हूँ। So we're gonna cook this for. तो मैं इसको पीछे वाले स्टोव पे रख दूंगी, ये कुक होता जाएगा और आपको मैं अपना सेकंड बताती हूँ कि मेरे मेन्यू में सेकंड क्या है। So Mum just said that we're gonna cook the mincemeat for at least 15 minutes, and while that's cooking, she's put it on the other hob. She's gonna prepare another dish. Yeah. 4 आलू लेके मैं उसमें ऐसे, मैं आज चॉपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ साथ बातें भी कर रही हूँ और मैं हाथ से काट रही हूँ। इस हाथ का रात को फिर बुरा हशर होगा और फिर नाफिया उसको फिर रुकिया, सॉरी समी तो रुकिया पढ़ के देता है, मलिहा सुमैया रुकिया करके देती है। रुकिया एक आयात होते हैं जिसको पढ़ने से हर किस्म का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप में से भी कोई क्रॉनिक पेन हो किसी को तो वो अपने ऊपर रुकिया पढ़ लिया करें। वो टिपिकल कोई आयात है, मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन अच्छी बात है अगर कोई बुज़ुर्ग उसका इजाज़त दे दिया। मैं एक टोमेटो भी इसमें बड़ा बड़ा करके डाल दूँगी, वो आधा था और अब पूरा एक पूरा और डाल दूँगी। So just put 1.5 tomatoes. जी जान। So just put half teaspoon of ginger, 1 teaspoon of garlic, how much crushed chili? 1 teaspoon of crushed chili, 1.5 tomato. Yes. और अभी मैं इसमें थोड़ा सा इतना बंच सा धनिया भी डाल दूँगी। And just a bunch of coriander. मैं अपना कीमा भी देख लूँ साथ साथ। And she's checking up on the keema as well. क्योंकि इसके ऊपर भी तो नज़र रखनी है। Because we have to keep an eye on the keema as well. Because I'm cooking on high flame for 15 minutes. अच्छा, अब इसमें मैं अपना सॉल्ट डाल दूँगी। मैं अक्सर रमज़ान में सॉल्ट भी भूल जाती हूँ। सॉल्ट डाल दूँगी और इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, सिर्फ अपना मिक्स मसाला 2 स्पून डाल देती हूँ बस, और कोई चीज़ नहीं। और इसको मैं अच्छी तरह से मल लूँगी। अभी ये मेरा कटलस का मसाला भी तैयार हो गया, तो मेरी सारी चीज़ें अब तैयार हैं। अभी मेरा जो ड्रिंक है, जो बच्चों को सबको बहुत पसंद होता है, मैं इस तरीके से ड्रिंक, मेरे बच्चे कोई भी रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक नहीं पीते हैं, लेकिन जब मैं इसमें मिलाती हूँ तो फिर उसका सारा वो ख़त्म हो जाता है। ये एक फ्रूट कॉकटेल का ड्रिंक कैन ले लेती हूँ, उसको मैं ऐसे मिक्सी में मिक्स कर लेती हूँ, प्यूरी बना लेती हूँ। प्यूरी बना के उसमें मैं ओनली 2 टेबलस्पून शुगर डाल लेती हूँ, सॉरी 3 टेबलस्पून, हमेशा मेजरमेंट इधर उधर हो जाती है। ओके, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पर इसमें मैंने पहले से आइस डाली हुई है, आइस का डालना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी तरह से 5 मिनट तक मिक्स कर ले। तो इसको मैं 5 मिनट तक मिक्स कर लेती हूँ। इसके ऊपर ये जो है, मैं इस किस्म का रॉबिन्सन्स का ड्रिंक डाइल्यूटेड वो लेके इसमें डाल देती हूँ। तकरीबन 1 गिलास वो डाल देती हूँ। और ये रूह अफ़ज़ा अगर किसी को पसंद ना हो तो ये बेस्ट तरीका है। इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, और ये इतना नाइस होता है कि सारी ठंडक ख़त्म हो जाती है। और इस किस्म का जो ये ड्रिंक्स आते हैं, स्पार्कलिंग ड्रिंक आते हैं, कोई भी स्पार्कलिंग ड्रिंक, उसमें हाफ बॉटल वो डाल देती हूँ। और इस ड्रिंक को आप चख के देखना कि ये कैसे लगता है। तो ये मेरा ड्रिंक तैयार है। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि थोड़ी देर बाद इसमें मैं, जब बिल्कुल हम इफ्तार के करीब हो जाएंगे, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी।
तो इतनी जगह मैं खाली छोड़ती हूँ क्योंकि ये मेरा फिर और आइस चला जाएगा। इसको मैं इसी तरह रख लेती हूँ। तो मेरा कीमा भी तैयार है, पर मैं ले आती हूँ ताकि आपको बता दूँ, दिखा दूँ कि मेरा कीमा कैसे तैयार है। इसको मैंने पीछे के चूल्हे पे अच्छी तरह से 15 मिनट के लिए भून लिया। ये अब इस तरह से जब आवाज़ आए, चिश चिश की आवाज़ आए, इसका मतलब है आपका कीमा तैयार है। अब इसके ऊपर मैं अपने मेरे फ्रोज़न पीस है वो 1 कप के बराबर में डाल दूँगी बस। So after putting it off the back hob for 15 minutes, Mum's brought it to the front and she's put 1 cup of frozen peas into the mix. बस इतना डाल के अब इसको मैं फिर दोबारा भूनने के लिए रख दूँगी। मैं इसको दोबारा अब भूनने के लिए 15 मिनट भूनने के लिए फिर रख दूँगी, लेकिन इस दफ़ा मैं अब हल्की आंच पे रखूँगी। पहले तो मैंने रखा था हाई फ्लेम पे, अभी मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। ये भूनता जाएगा जब तक मैं और चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। तो ये मेरी मेन डिश है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मेन डिश एक ही खाते हैं और स्टार्टर ज़्यादा खाते हैं। So we've just put the mincemeat for another 15 minutes on the hob, but on low flame. Low or medium? Low flame. And then till then Mum could cook other things. अभी 7:39 है और 16 पे रोज़ा इफ्तार होना है। बस अब मेरा फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी सबसे पहले तो मैं पैन रखूंगी इधर, इसमें डालूंगी ऑयल, इतना सा ऑयल डालूंगी 3/4 के, फिर पैन से बाहर भी ना आए। और इसको गिराने में मैं बहुत माहिर हूँ, स्पेशली रमज़ान में। Malia touched it today. ये Malia is exactly तो like मैं my ये mama. वाला पेस्ट्री मेकर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी तरीका दिखाती हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। ये मेरा मिक्स रेडी है। अब थोड़ा सा नाफिया मेरी तरफ हो जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे आटे ने 1 घंटा रेस्ट कर लिया है, पर मुझे बस सिर्फ इसको आधा घंटा रेस्ट चाहिए था, पर इसने 1 घंटा रेस्ट कर दिया। चलो इसका भला हो। जितना कम आप ड्राई फ्लावर लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा फ्लावर ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा फ्लावर लगाने से आपकी पेस्ट्री ख़राब हो जाएगी। सुमैया ने थोड़ा थिक बना ली है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा थिक करके, इसका थिक होना बहुत ज़रूरी है। सुमैया टमाटर थिक कर रहा था बच्चे। तो ये राउंड बना दिए, लेकिन थोड़ा थिक है। इसको मैं ऐसे डाल दूँगी, थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी और 1 चम्मच से थोड़ा सा स्टफिंग लेके इसके अंदर ऐसे रख के इसको ऐसे बंद कर दूंगी। और ये इस किस्म का बन जाएगा। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, जो एक्स्ट्रा हो वो बेशक ऐसे करके काट दें, तो इस किस्म की शेप बन जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऐसे करें कि फोक से ऐसे किनारे बना लें, लेकिन इनका बंद होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक डाल के देखती हूँ, पर इसका पतला होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये मोटा अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपकी टुकड़ियाँ ऐसे एक्सीडेंटली मोटी कट जाए तो इसको पतला करें, जैसे समोसे के लिए पतला हम बनाते हैं।
तो इसको ऐसे बंद कर दे, ऐसे करके जोर लगा दे इसको, फिर इसको खोल दे और जो एक्स्ट्रा बिट है वो इसको ऐसे करके निकाल दे। तो ये आपकी पेस्ट्री तैयार है और इसको इसमें डाल दे। ये मेरी, हम हमेशा पेस्ट्रियाँ ओवन में बनाते हैं ये, पर ये ओवन नहीं, ये फ्राई की हुई समोसे की तरह पेस्ट्रियाँ हैं। So we've got samosas here. अगर ये मेरी लोडेड चिप्स तैयार है, लेकिन इसके ऊपर अब सिर्फ चीज़ पड़ेगा, चीज़ इसके ऊपर जाएगा बस। सो ये मेरे लोडेड फ्राइज़ है, कितने प्यारे हैं आप देख ले। हर रोज़ पकौड़ा खाने से भी इंसान तंग आ जाता है। तो ये मेरे लोडेड फ्राई है। चाट के लिए जो मेरा इंग्रेडिएंट्स रेडी था, छोले अलग सॉस अलग, उसको मैंने मिक्स कर दिया। अब प्लेटिंग करूँगी, इसके ऊपर डाल लूँगी। मैं पहले से समोसा इसमें तोड़ूंगी नहीं, जो जिसकी जो मर्ज़ी होगी वो अपना समोसा खुद ही तोड़ता जाएगा। तो ये ऐसे मैंने रख दिया है। अब इसके इर्द गिर्द मैं सारे समोसे रख लूँगी, तो हर बंदा अपना समोसा क्रश करेगा, उठाएगा और इस तरह से अपने समोसे को, और इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी ऐसे करके अपनी इमली की चटनी डाल दूँगी। ये मेरा समोसा तैयार है, तो रख देंगे कि अगर किसी को चाहिए होगी तो वो खा लेंगे। इसको भी साफ़ कर लूँगी। ये अलग से चटनी हो गई है, इमली की चटनी। ये अब मैं अपने लोडेड फ्राई को, पहले एक लॉट मैंने डाल दिया, अब इसके ऊपर मैं दूसरा लॉट, ये दूसरा लॉट डाल रही हूँ। ये मेरा दूसरा लॉट, तो वो चीज़ खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। ये मेरा चीज़ हो गया ठीक। और अब मेरा लास्ट वाला आइटम, cooking. Oh goddamn. Oh wow. Oh. Wow. A salad. Ooh. That looks good. Great table, eh? By me. This is the plate, this is the iftar spread. homemade naan, avocado salad, my pastry, chaat, samosa chaat, cutlet, loaded chips, and keema matar. And I'm so tired. I'm waiting for. It's 5 minutes left. I don't know, here, hold it. Oh, I'm so yellow. With the first fast, I'm very yellow.